Welcome back to another episode of Arjuna's Peace of Mind. And today we have Dr. Rebecca Pinto with us. Welcome to the show, and it's an honor to have you. मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि let's understand your journey from the beginning. How was your childhood? बचपन में आप कैसे थे? And did you always aspire to become a doctor? My answer is going to be very dumb, and I'm got judged also, but now I don't care. तो I think बचपन में हमको पता नहीं रहता है, and जब हम छोटे थे तब तो इतना सब था भी नहीं. We just had like proper engineer, doctor, specific things, pilot, but and it's very dumb. I wanted to become Miss Universe. Oh wow! I'll tell you what was the logic. मेरे को लगता था Miss India इंडिया चलाती है, Miss World वर्ल्ड चलाती है, and if I become Miss Universe, I'll be at that power where everything that's happening within the universe will like go under me. And I used to get up, you have to stand up, you have to say, my name is Rebecca Pinto, this is my roll number, I am from class this, and this is what I want to become. And I used to do this for 10 years. So I didn't want to become a doctor, but luckily, by the grace of God, I became. नंबर Miss Universe बन जाती, and then I would figure कि यार ये लोग तो मेरे को पूछते भी नहीं है कुछ करने के पहले। कोई पावर ही नहीं है. Yes. So no, I did not want to. I didn't know what I wanted to become, but I was very focused. I was very obedient. आप मेरे को बोलो कि इतना पढ़ाई करना है तो मैं कर लूंगी, इतने मार्क्स लाने हैं तो I'll get. Specifically, I did not choose physiotherapy. None of us were in the favor. मेरे घर पे भी they were not very keen on making me a doctor because there was this misconception कि आप बुढ़े हो जाते हो जब तक आपकी पढ़ाई खत्म हो, and लड़कियों की शादी करानी पड़ती है and all of that. So nobody was thinking of that. But मेरे एक प्रोफेसर थे in 11th-12th और उनको था that this girl is very good in science and she should do something, and if I put her in the right direction she will do well. So he called my father. He used to tell me Papa ko bulao, and I used to not call my father. He once figured a contact. He called my father. He got newspaper articles out. He told my father that physiotherapy is a good profession. You should put Rebecca, and Rebecca does not know what she wants to do. She's very good, but उसको and we don't have an idea यार. मतलब अब मेरे को आइडिया है कि IT वाले क्या कर लेते हैं, कहाँ ज्यादा रिलैक्सेशन है, कहाँ ज्यादा पैसा है, तब नहीं आइडिया था. तो पापा came home and Papa was like physiotherapy करना है. I was like okay, तो physiotherapy कर लिया. अच्छा, like that. Yeah. But by the grace of God, on the first day of physiotherapy, I realized this is what I like. तो first day पे ही ना वो आपको वो कैडवर वाले रूम में लेके जाते हैं जहाँ पे बॉडीज पड़ी हुई है. एंड वी वर अ ग्रुप ऑफ 18 गर्ल्स एंड आई एम टेलिंग यू ऑलमोस्ट 16 लोग ऐसे उल्टी कर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, और हम 2 लड़कियां थी वो लाइक कि इसको काट सकते हैं क्या, कैन वी सी व्हाट्स इनसाइड. सो दैट इवेंचुअली मेड मी रियलाइज दैट यही करना था एंड दिस इज माय पैशन. बट ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट आउट, समबडी एल्स फाउंड इट फॉर मी. नाइस. बट इसका रूट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल MBBS करते हैं, उसके बाद इज देयर एनी लाइक स्पेसिफिकेशन दैट यू हैव टू गेट इनटू? सेम होता है MBBS का. पहले जब मैं करती थी तभी CET हुआ करता था, अब नीट होता है. तो प्रोसीजर सेम रहता है कि आप अपना 11th-12th पास कर लो, फिर आप ये एक एंट्रेंस एग्जाम दो. अभी नेशनल एंट्रेंस एग्जाम होता है, पहले स्टेट लेवल पे होता था CET, हर एक अलग स्टेट का. तो अब नेशनल लेवल पे होता है, आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज में लग गया आप वहां पे कर लोगे, वैसा होता है. तो द प्रोसीजर इज द सेम. ऑनेस्टली इट्स द सेम. ओके. या डू यू थिंक लाइक हाउ इज योर लाइफस्टाइल राइट नाउ इन द सेंस कि जैसे मैं एक टाइम पे ना आई यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ असिस्टेंट्स जिनको मैं सिखाता था, ठीक है. तो उनके लिए वो आई वाज लाइक यू नो अ टीचर कि इसको तो सब पता है, ठीक है. बट कभी कभी होता क्या है कि आप एक टीचिंग वाली पोजीशन में तो होते हो, आप सिखाने वाली पोजीशन में होते हो, आप लोगों को रेक्टिफाई करने वाली पोजीशन में होते हो, बट खुद की लाइफ कभी ठीक नहीं चल रही होती और यू गेट इनटू द राइटर्स ब्लॉक. एंड हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता हो कि आप दूसरों की कमर ठीक कर रहे हो लेकिन खुद आपकी कमर दर्द है. तो हाउ इज योर लाइफस्टाइल इन दैट सेंस? This will be very hypocritical of me to say. मतलब ये बहुत वो क्या था, वो अश्नीर का डायलॉग था ना, शाता दोगलापन. तो on a daily basis, I'm telling you, daily basis पे patient walks in, मेरे को मालूम है इसको neck pain है because of his style of working or driving a car.
a woman or a man is walking and मेरे को मालूम है इन्होंने ये किया इसकी वजह से इनको बैक पेन है, मतलब शायद किसी को भी अपार्ट फ्रॉम अस किसी को ऐसा डेली 10 बार चेक नहीं मिलता है कि ये करोगे ना तो अब दुखेगा बेटा, एंड वी गेट इट ऑन आवर फेस बट वी आर स्टिल डूइंग इट. I will still drive and be like अच्छा, and then again go ahead and just keep driving. So I think you have to, it has to come from within. कोई आपको बोलेगा तो नहीं आता है, ये एक इंटरनल फीलिंग होती है कि अब बस now I have to look after my health. फिर आपको कोई बोले आपको ना बोले, you will look after your health. Yep. So this I think is yet to come to me कि बेटा अब बस हो गया, now you might deteriorate. अब तक कि ना जब सब अच्छा चल रहा रहता है ना, we take our health for granted. One day you fall in and you're like नहीं मैं तो जूस भी पी लूंगी, आप दे दो. I can relate to that. Yeah. जब चीजें सही चल रही होती है ना तो बंदे को लगता है ये ऐसे ही रहेगा. You basically you take that for granted. और जब जैसी थोड़ी सी भी पेन होगा कुछ होगा ना, देन यू रियलाइज कि अच्छा वो जब बॉडी एक परफेक्ट सेंस में होती है ना तो इट्स एक्चुअली इट्स अ ब्लेसिंग. Yes, yes. So you must be getting a lot of neck pain and all. I do. मेरा तो बैक पेन बहुत रहता है, सारा 24 घंटे में बैठा रहता हूँ. Yeah. Oh yeah, because you have to sit only and work full time. Yeah, because editing. Your work is on the computer. Yes. So अभी तो because I also have a baby ना, so उसको उठाता हूँ और कभी उसको प्ले एरिया में लेके गए तो झुक के ऐसे, तो वो पोस्चर करेक्ट नहीं होता क्योंकि हम जल्दी में होते हैं ना, तो मैं मतलब जमीन पे गद्दा बिछा के सोता हूँ in the house and वो लोग हंसते हैं, we don't realize हमको अभी और हंसाना है, तो मैं उछालती थी. Yes. फिर लग जाता था कैच, मैं सोचती थी यार क्यों उछाला, और 2 दिन मैं नहीं उछालती थी, ठीक हो जाता था. But the third day when again they are laughing, no trust me, you are like यार 2 दिन का दर्द देखेंगे क्या होएगा, and you again want to play. The way they laugh and interact with you, you're like कि देख, और वो तो सो के they wake up normal. Yes. हम तो कल के ही खेलने से अभी उभर रहे हैं. हाँ, correct. But do you think in general physiotherapy is a very underrated field? Not anymore. जब मैंने स्टार्ट किया था ना तब शायद लोगों को फिजियोथेरेपी क्या होता है ये भी नहीं पता था, या ऐसा कोई फील्ड. जब मैं तब लोगों को भी मिलती थी एंड आई वुड बी लाइक आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, अच्छा व्हाट डू यू डू, क्वेश्चन फिर भी यही होता था. अब आई थिंक अवेयरनेस बहुत बढ़ गया है. मूवीज, वेब सीरीज, डिजिटल सीरीज में भी दिखा देते हैं दैट यू नो एन एक्टर और द मेन लीड इज टेकिंग फिजियोथेरेपी. सबको समझ गया कि आईपीएल वगैरह में कितना जरूरी होता है. तो अवेयरनेस आई थिंक बहुत, जब से मैंने स्टार्ट किया था टू नाउ बहुत अवेयरनेस बढ़ गया. पीपल नो व्हाट द फिजियो इज, दे आर नॉट लाइक आप क्या करते हो. Absolutely. वो नहीं रहा है. मुझे लगता है अभी because of social media also ना a lot of awareness has been generated because ऐसे chiropractors भी होते हैं. Is it different from physiotherapy, right? Yes. तो उसमें क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कायरोप्रैक्टिक एक फुल फ्लेजेड कोर्स नहीं रहता है. तो कायरोप्रैक्टिक एक पर्टिकुलर वे का मैनिपुलेशन होता है. अब मैं आपको कैसे समझाऊं, उसमें एडजस्टमेंट्स करते हैं वो, मैंने तो काफी वीडियोस देखे. Okay. हाँ, तो they just give you immediate relief from any pain. One chiropractic ना हर एक चीज पे नहीं कर सकते. Okay. You can't just keep cracking bones. But there are some things जिस पे magically, if you're having pain for like a year and they just crack it, sometimes that pain disappears. Oh. But the problem is कि वो क्रैक अभी 2 दिन ही रहेगा. अभी आपको जाके एक्सरसाइज करना पड़ेगा ताकि वो वापस नहीं आए. You can't just go every 2 days and crack. तो काफी लोग एडिक्टेड हो जाते थे, लाइक अरे अटक रहा है फिर से क्रैक कर दो ना, अरे अटक रहा है. इट्स अ टाइप ऑफ मैनिपुलेशन. लाइक इफ यू आर से कंपोजर, गाना लिखा जाएगा, फिर उसको कोई गाया जाएगा, फिर उसको एडिट करते. एडिट में भी 4 टाइप होते, तो वो 4 टाइप में से एक टाइप है कायरोप्रैक्टर, एंड दैट होल थिंग इज फिजियोथेरेपी. अमेजिंग. ओके, सो इट्स दैट वे. समझ गया मैं. हाँ, ये इंटरेस्टिंग है. बट डू यू प्रैक्टिस योगा, एनी सॉर्ट ऑफ योगा? On my, like, do I do any form of exercise? No, particularly yoga. I just want to find out. But I do advise. मैं एडवाइस बहुत करती हूँ. योगा सबके लिए नहीं होता है. ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि it's only if you want to elongate and stretch and breathe through those muscles. अगर आप already stretchable हो and flexible हो, योगा करके you might get an injury. And in the form of exercise, I do nothing. I would do swimming.
I Okay. regularly That's a good do swimming as a exercise, yeah. form of exercise. So Hmm. whenever I get say a gap, I'll swim a few laps और मैं आ जाऊंगी. बट इज देयर एनी लाइक जो आप फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइजेस कराते हैं और जो जैसे उपयोगा हो गया या कुछ योगा में भी कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं, इज देयर एनी लाइक कॉमन ग्राउंड बिटवीन दीज टू? Yes, there are काफी सारे exercises. अब we work between the funda of stretching and strengthening, है ना? अभी योगा works in mainly the concept of stretching, ज्यादा strengthening नहीं करवाते हैं. But if we get a patient जिसको stretching की जरूरत है, हम जो formations कराएंगे और कोई भी योगा teacher जो formations कराएंगे, वो formations बहुत similar रहेगा. The difference is going to be कि हम आपका वो formation थोड़े time के लिए hold करेंगे और वो आपको वो like 10 minutes में they teach you how to breathe in that form and feel that form. We just teach you that अच्छा stretch हो रहा है, खत्म हो गया है, okay now move on to something else. Because I've been like मैं बहुत ज्यादा हार्डकोर योगा में घुस गया था एक टाइम पे विद सदगुरु, एंड 2 years like मेरी एनर्जी लेवल नेक्स्ट ही था. मतलब 24 में से आई यूज्ड टू वर्क 18 hours. ठीक है, मेरे 12 घंटे के तो सेशंस होते थे, प्लस आई वाज डूइंग लाइक ये भी कर रहा हूँ वो भी कर रहा हूँ, एंड देन वी वर एक्सपेक्टिंग अ बेबी एट दैट टाइम. तो उस समय ना माय वाइफ वाज ऑन बेड रेस्ट कंप्लीट फॉर 6 months. तो मैं बहुत भाग दौड़ करता था, कभी ऊपर कभी नीचे, यहाँ से सामान लाना, और आई नेवर यूज्ड टू गेट टायर्ड, एंड दैट वाज एक्चुअली बिकॉज ऑफ योगा. बट उसके बाद वो डिसकंटिन्यू हो गया, एंड दैट इज व्हेन उसके बाद 6 महीना तो मैं चलता रहा. मुझे लगा अब मैंने बॉडी ऐसे लेवल पे ले आया हूँ कि अब कुछ नहीं होगा. बट वो 6 महीने तक चला, उसकी वैलिडिटी ओवर. उसके बाद देन अगेन आई स्टार्टेड गेटिंग माय बैक पेन्स, नेक पेन, क्योंकि फोन पे हम कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, या तो फोन पे देख रहे हैं ऐसे कमेंट के रिप्लाई कर रहे हैं, या फिर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, और स्लीपिंग पोस्चर भी समझ में नहीं आता. तो वो चीजें हैं. बट डू यू थिंक स्लीपिंग पोस्चर कैन फिक्स थिंग्स? A lot, क्योंकि वही with the kind of अभी जो काम करते हैं ना हम लोग, I'm telling you we are one of the most overworked generation. Yes. I don't think कोई और generation इतना काम करता होगा. But वही एक time रहता है. I know there are people who are surviving on a 4 hours of sleep, who are surviving on a 6 hours of sleep, और हमको बोला जाता है 8-9 घंटे सो जाओ. But वही एक टाइम रहता है now when your body can heal through whatever stress you've done. एक तो हम ऑलरेडी बहुत ओवर स्ट्रेस कर रहे हैं, ऊपर से इफ इन दैट टाइम आल्सो यू आर स्लीपिंग इन अ टाइट पोजीशन, तो जिसको रिलैक्स होना है वो रिलैक्स ही नहीं होगा. यू विल वेक अप विद द सेम पेन, यू विल वेक अप विद द सेम कैच. तो स्लीप, हाउ यू स्लीप एंड हाउ मच यू स्लीप, बहुत इंपॉर्टेंट. अभी तक आपने कोई ऐसी कंडीशन सुनी है? व्लॉगर्स शोल्डर. मैं आपको बताता हूँ. ये हर व्लॉगर की कहानी है. ये हमारा कैमरा होता है, ये मैंने नया डेवलप किया है. तो अभी मैं धीरे धीरे ना करते करते हल्के कैमरे पे आ गया हूँ. बट रिसेंटली आई डिड वन पॉडकास्ट विद ट्रैवलिंग देसी. तो उनका कैमरा उठा के ना मैंने कहा ये तो मेरे को हो जाएगा फिर से. ये ऐसे हम करते हैं ना व्लॉगिंग, और बहुत देर तक करते हैं. उसके बाद देयर आर लाइक टाइम्स जब मेरा ये सेक्शन ना इट जस्ट फील्स कि कुछ अटक गया है यहाँ पे, मतलब चल ही नहीं रहा है ये, ऐसे थोड़ा सा भी हिलते हैं तो दर्द होता है. सो ऐसी कोई कंडीशन डेवलप हुई है अभी तक? कोई ऐसे कुछ नया टर्म आया है? व्हाट यू सेइंग इज वेरी कॉमन. उसको ब्लॉगर शोल्डर ऑफ कोर्स बोला गया. वो पोजीशन इज ब्लॉगर्स का, बट वो पोजीशन बहुत कॉमन है जहाँ पे ऐसा लगता है ये अटक गया है एंड अभी ये दर्द अगर 4 और दिन रहेगा मैं अपना हाथ का भी वजन नहीं ले पाऊंगा. एग्जैक्टली. So that is how bad, and this is a cervical, मतलब neck का problem है वो. तो how do you fix that? तो आपके neck से है ना simple है, नसें जाती है towards your hand. One of the nerve आप उसको ऐसे move करते हो कि आप उसको अटका देते हो और वहाँ अटक जाते हो और आपको दर्द देने लगता है. तो every time you do that position, it will prick you and say that I'm getting stuck. And if आप उसका ध्यान नहीं रखोगे, then the nerve is pressed. फिर आपको पूरे हाथ में pain feel होता है. You feel like ये हाथ, मतलब this hand I can do all the work, but इसको अभी मेरे को नहीं हिलाना है. So in that one, of course, उसको release करना पड़ता है, and you have to do neck strengthening exercises. Neck strong रहा ना, तो वो nerve कहीं जाके अटकेगा ही नहीं, क्योंकि वो muscles ही सब load ले रहे हैं. Basic होता है कि अगर level A load नहीं ले पा रहा है, तो level B को लेना पड़ता है, या फिर level C को लेना पड़ता है. When level A is taking care of all the work well, तो B, C पे तो बहुत ही कम लोड आएगा. What was your like mindset? कैसे आपने सोचा कि मैं इंस्टाग्राम पे इस तरह की इंफॉर्मेटिव रील्स बनाऊंगी, एंड शुरू कब किया आपने ये? Lockdown, I think 80% of us are lockdown born.
Yes. हम सब. हम सब, मैं Maybe भी. some of us really wanted to do something and lockdown has helped us. Some of us really didn't want to do anything, but lockdown में हमने कर दिया है. So I'm the second type. मेको, I am not a person who enjoys fame and all. I'm a very private, intrinsic, अंदर से I'm a very private person. ऐसे I'll talk to 4 लोग, but तो I never thought कि मैं Instagram करूंगी and I put my life out there and I have to constantly put myself out there. Yes. But while I say this ना, मैं बहुत workaholic हूँ. I don't know if it's for good or for bad, but I want to work and I love working. तो लॉकडाउन में पहले 5-6 दिन में ही I started feeling कि यार अब कब जाऊंगी, कब मैं बाहर आऊँ to work. तो of course touchwood by the grace of God मेरे को 15 दिन में I started working. COVID duties हो गए. I started going and treating my old patients plus COVID duties की वजह से I was treating COVID patients. और what I also started doing is I started Instagram का one page कि my friends and family will only send it to people and I will send it to my patients और मैं online consult करूँगी. And honestly मेरे को नहीं लगा था कि मैं online consult कर पाऊंगी because physiotherapy is a very hands-on therapy. तो पहले तो मेरे को ही इतना टाइम गया समझने को कि यार एक आएगा पेशेंट, I will manipulate, I'll fix and I'll send. 2 मिनट में अब ऑनलाइन वो कैसे करूं? Correct. But eventually, of course, that is how I started. And मैंने पेज बनाया, फिर उस पे वो स्टैटिक पोस्ट डालती थी कि कंसल्टेशंस करूंगी, फिजियोथेरेपी इज वेरी गुड, बेसिक एकदम immature things. And I think then reels came in and I was just following. If there was a video, I would do a video. फिर reels came in, I was like चलो reels में बात करके देखते हैं. And as a person, I like to laugh a lot and always have fun. So I started doing the same thing videos. I started doing more fun content and all. And I think 3-4 videos went like crazy viral. They started hitting millions and all. That is when the followers started to increase and the page also magnified to where it is. Amazing. So but basically unplanned था ये, हम सबकी कहानी यही है. हमने शुरू कर दिया था कि बिकॉज मेरे साथ भी एग्जैक्टली सेम हुआ था. आई वाज डूइंग माय सेशंस, तो हमें क्या करना पड़ता था, स्टूडियो जाना पड़ता था. तो वहां पे ना 9 घंटे का सेशन बुक्ड है. अब अगर मेरा काम 3 घंटे में खत्म हो गया ना, आई स्टिल हैव टू बी देयर फॉर द नेक्स्ट 6 आवर्स. तो वहां पे क्या होता है, टाइम पास कि अच्छा अभी अप्रूवल आएगा, अभी ऐसा होगा, अभी ये होगा, एक ऑप्शन और बना दो, चलो बैठ के चलो बिरयानी खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कुछ भी करते हैं. क्योंकि स्टूडियो तो बुक हो रखा है. तो व्हेन दैट लॉकडाउन हैपेंड, तो हमारे पास ऑप्शन आ गया कि नाउ माय स्पीड हैज बिकम माय, यू नो, इट हैज बिकम अ प्लस पॉइंट. कि मैंने 2 घंटे में ट्रैक भेज दिया, अब क्लाइंट अप्रूव कर रहे हैं. नाउ व्हाट डू आई डू फॉर द नेक्स्ट 6 आवर्स? दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय यूट्यूब. यू नो, यूट्यूब चैनल तो मेरा 2012 से बना हुआ था, बट उसके बाद मैंने शुरू किया कि यार लेट्स डू समथिंग. मुझे ना फिल्मी कीड़ा बहुत है, ठीक है, कि मेरे को मतलब मैं हूं तो व्लॉगर, but it's like I'm all trying of us Indians know have this little yes. हाँ, तो मेरे को कहीं था यार ये शॉट ऐसे लेके ना डालूंगा व्लॉग में, बड़ा मजा आएगा. तो मैं वो प्रोसेस को इतना एंजॉय करता था, तो आई स्टार्टेड क्रिएटिंग वीडियोस एंड यू नो दे पिक्ड अप. ऑब्वियसली लॉकडाउन था, माय वाइफ वाज प्रेग्नेंट. YouTube has very good reach. Yeah, I don't know how it happened. Yeah, even अभी when I was going through your YouTube, मेरे को ज्यादा नीचे तक देखना भी नहीं पड़ा. The recent most video was only touching such views and I was like, oh my god. पता नहीं क्या चीज कोई क्लिक हो गई लोगों के साथ. बट आई थिंक यार लॉकडाउन ने बहुत लोगों को मतलब मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज दी हैं, लाइक यू नो कंटिन्यूइंग कि ये चीज वायरल कंटेंट है या ये चीज हिट हो जाती है. वो मुझे मैं बताता हूँ मेरे लिए कैसे ना, मेरे लिए वो कंटेंट अच्छा है जिसमें मैंने थोड़ी सी कलाकारी की है कि ये देखो ये शॉट ऐसे बनाया कि वो कीचू भाग के आ रहा है, मैंने यहाँ से उसके जूते दिखाए, फिर वो शॉट लिया. तो वो मेरे लिए, मैं फिल्म मेकिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपने व्लॉग्स में, ठीक है, क्योंकि मेरे को आगे जाके कोर्स करना है. बट कभी कभी जो मेरे लिए बहुत ऐसे बेसिक व्लॉग होता है ना, वो मिलियंस में पहुंच जाता है, और जिसमें मैंने अपनी कलाकारी की होती है ना, उसको लोग देखते हैं कि यार ये ज्यादा फिल्म मेकर बन रहे हो सर आप, ये शॉट बहुत लंबा था. I have literally stood in a video and I'm like, and the videos hit like 8.9 million. Wow. And I am sitting and saying, listen, ये कसरत करो, ये खाओ, but नहीं, उनको नहीं टच करना है. ये clapping has gone to something. तो ये तो we are all trying to figure out कि भैया क्या मतलब वो है मुद्दा क्या है
अदरवाइज तो फिर सारे वीडियोस हम वायरल ही बना लेते ना. Like abhi, that thing, you know, there's this, of course you're a musician, so you know, there's this thing that a girl gets up, she touches and she does and she's gone. Yeah. And everybody is making a remix on that. बेचारी जिसको लगा था, उसने हाँ. सोचा भी रहेगा that एक BTS पे ये हो जाए. करेक्ट. Yeah. हाँ, मतलब यही होता है कंटेंट. और आजकल तो इतना फास्ट हो चुका है ना, मतलब द डिजिटल मार्केट इज सो फास्ट कि अभी कोई चीज आई न्यूज में या फिर कोई चीज हुई, उसके ऊपर विद इन 10 minutes you will see memes and that will become the source of news for you, for people like Yes, us who are yes. consuming, you know. जब वो विल स्मिथ का सीन हुआ था तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है, एंड देन मैं मीम्स देख रहा हूँ, मैंने हाँ, कहा उठ के हमने देखा कि क्या हाँ. हो रहा है. तो आई मीन कुछ भी चीज को ना, थिंग्स गेट ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, बट एट द सेम Like this टाइम. Elon Musk वाला thing, या Twitter वाला. हाँ, अभी मतलब हुआ है. the source of us getting news is not a news channel anymore, Yes. is social Digital media. media, yes. अच्छा, Elon Musk ने खरीद लिया. हाँ. सब गलत मिलत इंग्लिश में लिखा होता है वो, बट कन्वे हो जाती है बात. अभी बराबर. उसके ऊपर सब चल रहा है कि यू नो सर ये कर दो वो कर दो. ये अभी इलॉन मस्क ने ट्वीट किया, देन आई एम गोइंग टू बाय कोका कोला ऑल्सो. Coca-Cola, हाँ, cocaine in it. कोकेन. मैंने भी पढ़ा वो. मैंने कहा यार ये क्या बोल रहा है भाई. मेरी तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है वो, बट तो ये मेरे को ट्वीट तो पढ़ के 2 मिनट का समझने को कि ये बनाया हुआ है कि ये उसने डाला है. एग्जैक्टली तो मैं भी, तो मैंने you फोटो don't देखा. know. हाँ, हाँ, एग्जैक्टली. पता नहीं था कि ये एक्चुअल है कि नहीं है, बट आई जस्ट, हाँ. मैं हंसा और निकल लिया आगे, वैसा टाइप. मैंने हाँ, तो कहा मेरे को तो अब तक नहीं मालूम है. दैट इज, मैंने भी देखा आज ही, बट आई डोंट नो, क्योंकि वहां पे उधर टिक भी था, इलॉन मस्क का प्रोफाइल था, बट आई वाज लाइक अरे ये यार इन्होंने किया लोग है बना देते कि हैं. सच में लिख दिया है. हाउ इज ही राइटिंग लाइक कोकेन इन इट. that is one drawback of you know social media की ऑथेंटिसिटी कहीं ना समझ में नहीं आती. और आजकल तो क्या है ना, यस. जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में तो ऐसे इन्फॉर्मेशन जाती है विदाउट एनी यू नो, ना उसका कोई आगे पीछे देखते हैं वो कि जेन्युइन है कि नहीं, बस ग्रुप्स में आ रहा है कि ये देखो ये हो गया, ऐसा हो गया था, तुम्हें पता है. और फिर हम अरे उनको बताते हैं. क्यों, मेरे ऑफ कोर्स हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में उतने नहीं आते जितना हमारे पेरेंट्स के ग्रुप में आते हैं. एग्जैक्टली. मेरे पापा के ग्रुप में एक बार आया था कि क्लिक ऑन दिस लिंक और आपका बैटरी फुल हो जाएगा. मतलब आपको क्या लगता है, वन तो आप जब सोशल मीडिया यूज कर रहे हो आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही, आपकी बैटरी कम हो रही है, और आपको उस पर ऊपर लगता है दैट इफ आई क्लिक ऑन अ लिंक एंड ही इज सीइंग मेरा बैटरी चार्ज नहीं हुआ है. यस, मतलब मैं अभी इसमें समझाऊं भी क्या. एग्जैक्टली. बट यार it's funny that how जो older generation भी है ना, they have somehow gotten used to the idea of using Facebook, WhatsApp. मतलब WhatsApp पे एक गुड मॉर्निंग ग्रुप बना हुआ है, एक गुड आफ्टरनून ग्रुप बना हुआ है, एक गुड नाइट ग्रुप बना हुआ है, उसमें गुड मॉर्निंग मैसेज आ जाएगा, डेली एक कोट आ जाएगा. फैमिली ग्रुप से 10-12. ग्रुप से. तो आई मीन ठीक है यार, उन लोगों के लिए भी उन्होंने भी देव जस्ट यू नो अडेप्ट कर लिया है वो चीज, बट वो हमसे ज्यादा यूज करते हैं. दे आर. तो मेरे को अभी YouTube, you are doing YouTube, so you know this better. So say somebody from our generation now will not watch a 30-minute video. But उनकी generation बैठ के उन्होंने जो चालू किया है पूरा देखते हैं, वो पूरा देखेंगे एंड तक कि रुको मैं वीडियो देख रहा हूँ. And we will not, we'll see like a 10-minute, 12-minute, max a 15-minute. But इनकी generation पूरे वीडियोस देखते हैं. तो I think they are also like a target audience for somebody. Yeah, absolutely. बिल्कुल. आई थिंक हर अभी तो यंगर ऑडियंस तो वैसा हो गया ना, इट्स लाइक कंज्यूमिंग जंक फूड कि यार बर्गर खा लेते हैं. सिमिलरली दैट शॉर्ट कंटेंट इज लाइक खट 30 सेकंड में इन्फॉर्मेशन दो, और सारी इन्फॉर्मेशन आप स्टोर भी नहीं कर पा रहे. लॉन्गर फॉर्मेट में क्या है कि एक चीज ना समझ में आती है कि अच्छा ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है. शॉर्ट फॉर्मेट में यू जस्ट ऊपर से नॉलेज होती है. इट्स लाइक रीडिंग नोट्स. यस. और एज अ प्रोफेशनल ना बहुत डिफिकल्ट भी हो जाता है एक 60 सेकंड 30 सेकंड में फुल इन्फॉर्मेशन देना. बिल्कुल. फिर आप आधी इन्फॉर्मेशन दे देते हो, फिर नीचे कोई कमेंट में आके वहां फुल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बट ये तो हमको भी पता है, हम बोल नहीं पा रहे. तो ये आई थिंक हर क्रिएटर की कहानी है. यू नो ऐसा लगता है कि यार कैसे इन्फॉर्मेशन दें, फिर लोगों की टिप्पणी आती है उसके ऊपर कि यार तुमने ये नहीं बताया है ना. तो अभी वो चालू हो गया ना, आई थिंक उसकी वजह से कि रीड द कैप्शन. अब हम कैप्शन लिखेंगे, अब आप जाके पढ़ लो. आप नोट्स में पढ़ लो, पढ़ाई कर लो पूरी. डॉक्टर भी बन जाना वहां से. डिग्री के लिए क्लिक इन लिंक इन बायो. Oh damn, social media is a thing, yeah.
और अभी तो मेटावर्स में आ रहा है, तो हो सकता है आपके फिर अपॉइंटमेंट्स वहीं पे हों। अब तो क्या, आई थिंक द लास्ट आई हर्ड अबाउट मेटावर्स इज कि कोई शादी, किसी ने शादी कर लिया मेटावर्स में। मेटावर्स इज और गोइंग टू बी मोर एक्सपेंसिव देन द रियल लाइफ नाउ। a lot of times, I don't know if you've noticed this, but ये बहुत होगा, ठीक है? And if you start noticing ना, you'll see it happening. Your phone is here, हमने हमारे फोन में ना एक्सेस दे दिया है, allow access to microphone, allow या access to या camera. So now even when your phone is locked ना, the access is on. और आप किसी से बोल रहे हो कि अरे मेरे को ना अभी शादी में जाना है, तो I have to get clothes, कौन सा, and we are talking brands, say we are talking X brand, Y brand, Z brand, and हमने 5 मिनट बाद फोन उठाया, the first suggestion that will come on your Instagram is a brand. yeah, And that you happens. think अरे मैं तो अभी बात कर अभी रही बात थी, but you're not understanding, आपने already Instagram को access दिया है of your microphone and camera and all, which is why when you are talking something, sometimes very randomly you get the same brand. अरे कुछ लोग जिनको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फंडा नहीं पता, वो बोलेंगे देख यूनिवर्स सिग्नल दे रही है, जो अभी तू बात कर रहा था लहंगा लेना है, अभी देख लहंगा सामने आ गया। Manifestation. यस, मैनिफेस्टेशन। आई थिंक या मतलब ये मैनिपुलेशन है इंस्टेड ऑफ मैनिफेस्टेशन। Manipulation. या Yeah, because हम सबको अभी वो जो आया था सोशल डिलेमा, क्या आया था नेटफ्लिक्स पे, जिसमें बताया था बहुत क्लियरली कि ये देखो हमने आपसे ही ये पूरा लिया है और ये हम आप पे ही यूज करने वाले हैं, आपके and we बेनिफिट all के लिए, watched it. आपके हाँ, बेनिफिट के लिए, ताकि आपको ढूंढना ना yeah. पड़े, हम सामने ही ले आएंगे आपके। और हमारा ही क्लोन बना देंगे, मेरे Exactly. बाजू में रेबेका रहेगी और मेरे को नहीं समझेगा कि हम्म, यार ये मैं हूँ कि मैं हूँ। बिल्कुल। एंड वो सब हमने देखा, हम डर गए, एंड देन वी आर वाचिंग सम अदर सीरियल एंड वी आर डन. So it was thrown on our face that this is what we are doing to you, but I think we're very helpless also. क्या ही कर सकते हैं, सब बंद कर दे क्या, वो हो जाता है। Absolutely. ये तो है। So going back to your journey as a doctor, आपका कोई ऐसा जब आप पढ़ रहे थे या कभी किसी पेशेंट के साथ ऐसा कोई एक किस्सा हुआ हो जो बहुत फनी हुआ हो, या जहाँ पे हाउ डू यू कंट्रोल, आई मीन कुछ लोग ऐसे होते होंगे ना कि कुछ ऐसी फनी बात बोलते होंगे एंड यू बीइंग मैं अ हंस के डॉक्टर। it is one, so I think I try and not be very serious. I'm very stern. Okay. But मैं ऐसे I'll just be like, have you done the exercise? And they'll be like, yes, we have. और समझता है झूठ बोल रहे हैं। I'll be like, अच्छा ठीक है, मैं आज नहीं सिखा रही हूँ, आप करके आ जाओ। And then so I'm not like, I'll not be mean to you, but I'll tell you that listen, जहाँ काम है वहाँ काम है, but otherwise I think I'm very I'm laughing only. जब patients pain में आते हैं ना, वन उनका कोई सुन नहीं रहा है, उनका पेन जब बहुत बढ़ गया है, they feel कि अब serious है, that is when they are coming to us, and nobody is happy in pain. So every person who's walking into the room is like a little, या तो they are coming with you in hope कि ठीक कर दो, कोई ऐसे झाड़ फूक कर दो और मेरा निकाल दो, या तो they are very irritated and they are like कि, so they are not happy. So your happiness is the only way the room will have a certain vibe. If you are also irritated now, so I think the room will only become like very negative. कि आप चिड़े हुए हो, वो भी चिड़े हुए हो, पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हो। मैं सोच रहा हूँ काश हमारी स्कूल टीचर्स ऐसी होती कि होमवर्क किया है, हाँ किया है, वो समझ जाते कि नहीं करके लायक, कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें होमवर्क नहीं दूंगी। That would have been great. मैं पिटता नहीं great, फिर I know, but हमारे school teachers तो अलग। तो I think I saw this, I'll share this with you. I saw this in a recent comedy show कि किसी this comedian he said कि यार हमारे स्कूल में unity नहीं होती थी, ये तुमको क्यों 90% लाना है जब हम 65 ला रहे हैं, सब 65 लेके आ जाओ ना, फिर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में इनके पास कुछ रहेगा ही नहीं बोलने को। ये बोलते कि हमारी तो क्लास ही खराब है, ये नहीं बोल सकते कि Arjuna is not really performing well, so not performing only, आप यूनिटी दिखाओ, आप सब 65 लेके आओ। एंड आई वाज लाइक बराबर तो बोल रहा है बिल्कुल। अब तो खैर अच्छी बात है, ग्रेडिंग सिस्टम आ चुका है ना, नंबर तो नहीं मिलते शायद अब, हाँ, व्हिच इज गुड। एजुकेशन हैज बिकम, स्कूल्स नाउअडेज जितना मेरे को नॉलेज है, इफ यू आर गुड एट क्रिकेट, क्रिकेट इज लाइक योर मेन सब्जेक्ट। आज इज लाइक एन एक्स्ट्रा, हमको वहां से मार्क्स नहीं मिलती थी। इफ समवन इज गुड एट हॉर्स राइडिंग इज देयर मेन सब्जेक्ट एंड एवरीथिंग what they are learning around it. Wow. So I think education has become very good now. Yeah, I mean हमें मुझे लगता है कि हम थोड़ा जल्दी पैदा हो गए थे। ये अब मेरे टाइम पे होता तो बड़ा मजा आता, because then you know this same thing happened with me जब मैंने 12th के बाद I moved to Mumbai
और ना उसके बाद आई वाज लुकिंग फॉर कोर्सेज कि यार मैं उससे पहले आई वाज ऑलरेडी मैं मीडिया के कोर्सेज कर चुका था, एनिमेशन एंड एडिटिंग एंड ऑल दैट, क्योंकि मुझे शौक था. और बट आफ्टर दैट आई कुड नॉट फाइंड अ प्रॉपर कोर्स as such for my field. But then I found something like a sound engineering kind of a course, but वो भी अगर graduation नहीं था, वो diploma था, तो मेरे पास कोई option नहीं था. But now you have options कि you can do Mumbai University से you can do a sound engineering का graduation. At that time I did not have that option. Yeah, so I think even in us we had like, okay, you become a specialization in something. Now there's shoulder, elbow, finger, little finger. So similarly in different professions, बहुत सब categories है to become like a specialist in a certain thing. Absolutely. I think we are like education is going in the right direction now. मतलब passion wise you can follow. हमारे टाइम पे तो I don't know how strict your parents were. मैं एग्जाम देके हम गाड़ी में बैठते थे and you have your question paper. And अब क्वेश्चन पेपर के मम्मा के साथ बैठना पड़ता था. फर्स्ट में कितना मार्क्स आएगा, वहां पे लिखा है 5. मम्मा 4 आ जाएगा. आएगा 4 and actually मेरे क्वेश्चन पेपर में मैं बता रही हूँ कि मेरे को ना इतना आई थिंक आएगा इतना, एंड मम्मा विल डू दैट एंड देन शी विल चेक इन योर पीटीए मीटिंग दैट आर यू गेटिंग दैट मच मार्क्स. नहीं, मेरा तो उल्टा सिस्टम था. मेरा कैसे था ना, माय फादर एंड माय मदर दे वर लाइक कि हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था, क्योंकि मैं था भी. मैं ना चीजें मतलब मेरा इंजीनियरिंग में बहुत दिमाग चलता था, प्रैक्टिकल साइंस में मेरा बहुत दिमाग चलता था. आई यूज्ड टू मेक रिमोट कंट्रोल कार्स व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड एंड ऑल दैट. बट एट द सेम टाइम आई वाज बिकॉज फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, और मैंने बहुत लॉस और प्रॉफिट्स भी देखे थे जिंदगी में. तो मेरे को था कि हर चीज में से ना मैं कोशिश करता था कि इसको हाउ डू यू टर्न इट इनटू अ बिजनेस. मेरे लिए वो एक गेम होती थी. तो मैंने अपना पहला मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट, आप सोचो मैं बैक बेंचर होता था 9th क्लास में. टीचर ने बोला अब्दुल कलाम आ रहे हैं हमारे स्कूल में एंड वी नीड टू प्रिपेयर अ साइंस प्रोजेक्ट, जहाँ पे एक बटन दबाएंगे तो फूल गिरेंगे उनके ऊपर, एंड वी नीड टू प्रेजेंट अ प्रोजेक्ट अबाउट इंडिया इन द 21st century. And you all have to make that. Yes, and nobody stood up because किसी को आइडिया नहीं था. तो मैंने बोला मैं करता हूँ. उन्होंने कहा तुम कैसे बनाओगे? तो मैं भी दिमाग, मेरे को था कि इनको मेरी क्रेडिबिलिटी पे तो भरोसा होगा नहीं, क्योंकि मेरी है ही नहीं, नंबर ही कम आते हैं मेरे. तो आई सेड माय फादर इज एन इंजीनियर, तो डोंट वरी, आई विल गेट इट डन. अब मैंने ले लिया प्रोजेक्ट. मैंने कहा लेकिन इतने पैसे लगेंगे इसमें, ये प्रोजेक्ट बनाने में. वो कहती है अच्छा ठीक है. हाँ तो आई सेड, क्योंकि मुझे पता था ना, आई हैड इन माय हेड दैट मैं सोर्सिंग कहाँ से करूंगा. एक छोटी सी मोटर आती है, रिमोट कंट्रोल आता है, मुझे पता था कहाँ से लेना है. मैं वही सब करता रहता था घर में बैठ. 9th क्लास में. You knew all of this. कितना कॉस्टिंग होएगा, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, सब मैं करता ही ये सब था ना. पड़ोस में एक शॉप थी, 2 शॉप्स थी. तो उसमें से ना एक शॉप थी जो बहुत चलती थी, और उसके पड़ोस में एक शॉप थी, उनका बिल्कुल बिजनेस नहीं होता था. तो मैं क्या करता था, उनकी चीजों में से ना तुड़वा के अंदर से मोटर निकलवा ली. मैं बोलता था अंकल देखो आपका तो बिक नहीं रहा है, ये 20 रुपए लो, मेरे को मोटर निकाल के दे दो सिर्फ. ऐसा था मैं 9th क्लास में. अंकल आपका तो बिक नहीं रहा है. हाँ मैं बोल देता था कि देखो अंकल वैसे भी नहीं बिक रहा है ये, ठीक है आप मेरे को दे दो. तो दिस माय डैड न्यू. एंड जब घर पे लेके आया ना प्रोजेक्ट, तो पापा बोल रहे हैं तूने बोल दिया है पापा इंजीनियर है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा तू क्या बना रहा है. मैंने कहा आप रुक जाओ, मेरे को पूरा आइडिया है, ठीक है मैं बनाता हूँ. देन आई क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट जहाँ पे ऐसे रिमोट आप दबाओगे तो अब्दुल कलाम साहब आएंगे, तो उनके ऊपर फूल गिरेंगे. दैट हैपेंड. एंड देन मैंने एक ट्रॉली बनाई थी इन 9th क्लास. जब मैं मिला अब्दुल कलाम साहब से, तो आई फेल्ट इंस्पायर्ड. एट द सेम टाइम द स्कूल डिड नॉट रिकॉग्नाइज कि ये बंदा टैलेंटेड है. Also, you were too damn smart for a 9th standard student, yeah. मैंने तो 200 रुपए में all the drawing things to my father, and my father doing my drawing because I was not good. In your case, your father is saying कि मेरे को तो नहीं पता तू क्या प्रोजेक्ट लेके आया, और तुम बोल रहे हो कि मेरे को मैं करके दिखाऊंगा. यस. तो आई क्रिएटेड दैट. उसमें कुछ चीजें थी जो मैंने पापा से हेल्प की, जैसे वो कील ठोकना था, मैं आई डिड नॉट हैव द स्ट्रेंथ. तो मैंने उनको फिर मेरे पूरा प्रोजेक्ट मेरा एग्जीक्यूट हुआ था 300 रुपए में, ठीक है. सोर्सिंग मैंने की, मैंने स्कूल को बेचा वो 2000 रुपए में, ठीक है. एंड देन आई पेड 100 रुपीज. तो आई पेड 100 रुपीज टू माय डैड कि ये आपने देखो कील ठोका था, ये 100 रुपए आपके हैं. तो ही सेड तेरी मेरे को टेंशन नहीं होगी लाइफ में कभी. कितने नंबर आए. You are my son also, and you are coming and giving me 100 rupees कील ठोकने के. I also feel like ये तो कमा लेगा. So मेरे साथ ना कभी वो इशू था ही नहीं. उनको जब मेरे नंबर कम आते थे ना, they used to blame the school. एक क्लास में 50 बच्चे बिठा रखे हैं, हमारा बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, तुम्हें पढ़ाना नहीं आता. So I was lucky that my parents had that kind of a mindset towards me
कि ये कर लेगा? मेरे पेरेंट्स का आई थिंक अनफॉर्चुनेटली दे डिडंट गेट टू स्टडी टू मच। तो जिनको मिलता नहीं है उनको ऐसा रहता है कि हम अपने बच्चों को करा दें। बिल्कुल तो बिल्कुल, फिर ये तो है। I would literally get tastings on maths में 49 out of 50 मिला है, तो 1 mark कहाँ गया है? ओ And I was like, Papa, I don't know, Papa, I don't know. My father is sitting, where did your 1 mark go? And I don't know. क्योंकि कैसे कैसे थे स्कूल में वो वो क्या बोलते थे, रफ वर्क। यस, उसके अलग मार्क्स देते उसके अलग थे। मार्क्स अरे थे, मेरे को करेक्ट। नहीं दिखाना है रफ वर्क तुमको, तुम रफ वर्क अच्छे से दिखा, उसके अलग मार्क्स। तो उधर बैठ के लाइन बनाओ। आज स्कूलिंग वाज वियर्ड यार। या मेरे को तो सिर्फ रफ वर्क के ही मार्क मिलते थे, बाकी फाइनल तक मैं पहुंचता ही नहीं था। तो रफ देख लो, इसमें 2 नंबर दे दो, ठीक है। मेरे एक बार केमिस्ट्री में 100 में से 2.5 नंबर आए थे, तो दैट वाज द पीक ऑफ माय लाइक। और कॉन्फिडेंस मेरे में इतना था ना, कॉन्फिडेंस मेरे में इतना था कि मैडम आपने नंबर बहुत कम दिए हैं ये। तो मैं तो क्योंकि आपकी गलती है, आई वाज आपने कुछ इनटू गलत म्यूजिक, तो मैंने कहा मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस क्यों नहीं की गई जब मेरे को स्कूल के लिए म्यूजिक रूम में बुलाया जा रहा है, ठीक है, टू परफॉर्म, टू गेट द ट्रॉफीज। तो मैं ही अपना केस लड़ रहा हूँ, मतलब वकालत की, मेरे को तो एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं मिली, मेरे को फिर से अटेम्प्ट करना है पेपर ये। इन फ्यूचर ये कॉन्फिडेंस ही काम आता है। अभी एग्जैक्टली, यू आर नॉट गोइंग टू आस्क मी कि रिबेका 9th में कितने मार्क्स आए। हाँ, जॉर्ज इज गोइंग टू लुक एट मी एंड टॉक टू मी एंड बी लाइक, यार मस्त बात करती हो, शी लुक्स कॉन्फिडेंट, और शी नोज व्हाट शी इज डूइंग। It's this only that reflects, yeah. These numbers, nobody knows who has made what. एब्सोल्युटली। बट अच्छी बात है ना, वो नंबर कॉन्सेप्ट जा चुका है, बट अब ये नंबर कॉन्सेप्ट मूव हो चुका है डिजिटल मीडिया के अंदर कि किसके कितने फॉलोअर्स हैं, किसके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, दैट्स हाउ पीपल जज योर And क्रेडिबिलिटी। I have, मेरी भाभी is a teacher ना, I'll tell you, ये कंसेप्ट आ गया कि कोई बच्चा, we had smart students, dumb students and average students. We literally had this. Abhi, she tells me that Rebecca, nobody is dumb. Everybody is smart. And when she says that, she's talking about their own potential. But कोई dumb है ही नहीं, किसी ना किसी का कोई ना कोई फील्ड में स्मार्टनेस है। तो listening to that feels यार कि हम, we all should have been nice to us also. Yeah, but it's good, चलो आगे वाली generations के लिए अच्छी बात है ये। This is evolution, right? Slowly it happens. So, but it's good that हमने वो दोनों चीजें देखी हैं। अपने बच्चों के लिए हम देखेंगे कि कितना इजी हो गया, हमने अपने लिए देखा है कि हाउ डिफिकल्ट इट वाज। तो हम भी उनको वही डायलॉग बोलेंगे ना जो हमने इतना पढ़ाई किया था। पढ़ाई किया, मैं तो नहीं बोल पाऊंगा खैर, बट यू कैन से दैट। मैं तो बोलूंगा तो बोलेगा पापा आपके आए थे, पॉडकास्ट सुन लेगा वो, तो बोलेगा 2.5 नंबर आए थे, आप क्या बोलेंगे? मैं तो वी हैव दिस नीस, मैं तो उसको आई हैव डिसाइडेड, हम बोलेंगे कि लॉकडाउन में ना हमारे यहाँ पे मिलिट्री आ गए थे, हम डर के बैठे थे। मैं तो बोलूंगी उसको राइट लेफ्ट, हैव टू गो इन द वर्ल्ड एंड रेक्टिफाई ये सच था कि झूठ था। बट टॉकिंग अबाउट लॉकडाउन, जब अभी डॉक्टर्स के लिए इट वाज अ वेरी डार्क टाइम, डार्क पीरियड, लाइक सब लोग मास्क पहन के घूम रहे, सब लोग को बोला घर से मत निकलो, बट डॉक्टर्स लाइक द फोरफ्रंट पे, लाइक दे वर लाइक सोल्जर्स। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस डीलिंग विद पेशेंट्स ड्यूरिंग कोविड, लाइक पीक ऑफ? बहुत रॉ एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ। एज डॉक्टर्स नो, some of us did not want to work because after the oath and all that you take, also you have your family. You know ki you might get something or you might not get something, and you're okay with that. But if you come home and you've given it to your parents and something happens, aap jiyoge kya uske sath? So some doctors did not want to work, and I think we should respect that because sabka apna choice. It's a choice, absolutely. Yeah. थोड़े डॉक्टर्स वांटेड टू वर्क, बट उनकी फैमिलीज अलाउ नहीं करती थी कि तुम चली जाओगी या तुम चले जाओगे तो तुमको नहीं मालूम क्या हो जाएगा। एंड सोसाइटी इज आल्सो नाउ वी सच अ रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, बट ड्यूरिंग द लॉकडाउन इफ आई एम गोइंग टू वर्क, बिकॉज आई वाज गोइंग टू वर्क, मैं 15 दिन घर थी और फिर मैं जाती थी। All my friends and my inner circle, my father also told me ki mat ja, but I am somebody that, listen, if I want to do, I'll do. This is what I have chosen to do and I want to work. So I was like, but of course I was staying in a very different area than my father, in the same house, but wo dar rehta hai. I was scared to even go and sit and have khana with my father. My father 60 plus. So you have that ki tumko kuch bhi ho jaye, you should not be responsible for someone else's illness. And the world, no, I remember I had gone to see a friend and मेरे friend ने बोला था तू बिल्डिंग के अंदर मत आना,
हम में से कुछ हो जाएगा तो, and I was like, यार you're not proud of me क्या, that I am working and I'm saving 10 lives there, और तुम बोल रहे हो वैसा हो गया था कोविड मेरे बिल्डिंग में। ऑफ कोर्स मेरे को अब तक टचवुड कोविड हुआ नहीं है, बट अगर हो जाता ना तब इन द फर्स्ट वेव, आई कैन इमेजिन एवरी पर्सन फ्रॉम माय सराउंडिंग सेइंग इसको ही चर्बी ज्यादा था या इसको ही चूल था, इसको तो होना ही था, ये तो जा ही रही थी बाहर। So the concept that you are going out to save lives of people who are, you know, it's difficult to save them. I'm going and doing something good. उसका value नहीं था. It was like घर पे बैठने नहीं होता है क्या? And our state was so bad. We had to wear these PPE suits. So we had to wear double PPE suits for a logic of saving yourself and a patient. So every time you use the loo, you have to remove that whole thing and wear a new one. You can't just तो मैं पानी नहीं पीती थी because I would be like यार वो आधे घंटे का you'll have to go out all the way, use the loo, remove this PPE suit, wear another PPE suit, sanitize again, फिर वापस आओ तो मैं पीती नहीं थी। And after 4-5 hours ना at your throat you start feeling pain क्योंकि आप काम कर रहे हो, वो सूख रहा है, वो दुख रहा है, and पीऊंगी तो I'll have to use the loo. After a week we got used to that lifestyle. Anybody would get used to that lifestyle because आप करते ही रहते हो. But initial 1 week was, we would feel like we'll die because everything was covered. We are not breathing only, but no part of our skin is also breathing. कोई exposed ही नहीं है, सब कुछ packed है, and we just do, and वो mask ऐसे चिपकता था और निकलता था. So the COVID scenario was crazy. Another crazy thing about that is that, you know, a patient has gotten admitted, you've spoken to that patient, you've treated that patient, you come tomorrow to that bed and they say that the patient is not there. And you realize that this patient had that level of COVID and you were here. Yep. Wow. So now you are like, for the first few days, you're scared कि मेरे को हो गया है क्या? Is this PPE really protecting me? Should I go home? Should I go stay in a hotel? The fear is at its peak that you feel that you've gotten it, you'll get it. Then I think eventually करके, you know, you just get into the point that darling, do it. होना रहेगा ना तो हो जाएगा. यहाँ किसी को भी हो रहा है तो होना रहेगा तो हो जाएगा. तू तेरा कर. You just keep doing what you are doing because now you're already exposed. So just do it. But this is sad कि you know आजकल सिर्फ हीरोज वही हैं जो मीम्स में आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो रियल मायने में, जो सही मायने में अपनी यू नो आप अपने आप को रिस्क पे डाल के यू गोइंग आउट टू सेव पीपल, बट आपकी सोसाइटी सोच रही है कि यार ये इतने पेशेंट्स को ट्रीट करके आई है, जरूर इसको कोविड होगा, ये यहाँ मत आए, इसको जरूरत क्या है, हीरो क्यों बन रहे हो? तो हीरोज चाहिए भी, और लेकिन आपका बंदा ना बने, मतलब आपकी सोसाइटी से ना हो, हीरो पड़ोसी की सोसाइटी से वो चलेगा. तो चलिए ठीक है, धीरे धीरे these things will also get fixed. But you accept it. I think you just understand कि they don't have the awareness and understanding of what you are doing. It's actually lack of awareness. Exactly. Yes. उनको पता ही नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हो या कितना कर रहे हो. तो I think it's just you have to accept it कि उनको they are not aware of this. सही बात है. But let's talk about how you are managing your time in terms of, you know, आपके अभी क्या कैसे appointments होती हैं, how much time do you give to your social media, क्या आपके पास एक team है, do you have like how do you do everything? So I don't have a team for social media. I do it all by myself because it's very personalized. The minute, let's say I handle your social media and you handle mine, हमारी personality reflect होगी in the captions, in the stories, in the kind of content. हमारी personality reflect होती है. हम कितना भी ना बोले, whoever's managing उसकी personality will reflect. So I've always done mine. And because मैं ये particular industry को belong नहीं करती हूँ, मेरे को तो अभी recently पता चला that there are social media managers and they create content for you and they manage you and all of that. ये सब मेरे को अभी, it's been 2 months that I've figured out. पहले मेरे को नहीं मालूम था. And I don't offline हमारा बहुत काम रहता है. तो I'm always on the phone, but I'm like taking appointments or talking. Okay. I'm never on. I'm never scrolling. I can never. So I just initially मेरे को difficult हो गया था कि कैसे content बनाऊं and कब post करूं and all of that. But I'm very organized that way.
So I wake up at 4 in the morning. I start my offline work. I do my visits that I have to do. I attend the hospitals that I have to attend. I come in, मेरा 7:30 यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ clinic start हो जाता है. So I finish a few visits, come back at 7:30, start my clinic, then go to my I have 3 clinics. And where are you based right now? In Mumbai? Mira Road, Mumbai. Mira Road, okay. So basically I go to town, do my visits, come back to Mira Road. So it's like, and that is the only time जब मैं कर सकती हूँ, because अगर मैंने सोचा कि मैं ये दिन भर में करूँगी तो I will spend 5 hours in going to that place and coming back. Yeah. Mira Road से town तो बहुत दूर है. Yes, but morning mein if I'm going, I'll reach in 45 minutes. I'll finish my work. I'm back in 45 minutes. So 1.5 hours mein I have done the work जो otherwise I'll take 5 hours. So that is how I chose कि ये जो दूर दूर वाले हैं वो मैं सुबह कर लूंगी. And if you all want me to come, you all please accept the time that I'm giving. So I do that. I manage my clinics and I'm not on social media. I am on WhatsApp. That is the only, I think, app that I use to stay connected again to my patients. Okay. Social media every day for 5 minutes I will use to check the DMs that I'm getting, because वहां से हमको consultations मिलते हैं. And I'll slot them at a certain time and everything. Content, so once a month, say on the, let's give it a date, on the 10th of April or on the 10th of every month or randomly 10th of April, I will decide कि अच्छा 11th को मैं shoot करूंगी. 10th रात को बैठ के I'm scrolling Instagram for the first time in the entire month. Okay. And I'll see what is trending. अगर एक ऑडियो 4-5 बार आ गया तो मेरे को समझ जाएगा कि अच्छा ये चल रहा है, ट्रेंड हो रहा है. Because मैंने अभी पूरा महीना नहीं देखा. So if I've seen an audio for 4 times, I know अच्छा ये ट्रेंड हो रहा है. I've seen a dance for 4 times, then I feel कि इस पे I can do something, so I write all that down. And the next day, for my work, I will remove 2 hours. I will shoot like 30 pieces of content or 15 pieces of content. That day only sit and edit all of that. And now I post. I post at a certain time every day. तो वो बहुत organized रहता है. I have an alarm. Even if I'm at a patient, I know कि अच्छा ये time हो गया, चलो 11 बज गया. I post at 11:30 usually. तो ये time हो गया, content डालो, and I'm working. Yeah. So when you have your time in place ना कि मेरे को alternate day डालना है या रोज डालना है और इतने बजे ही डालना है. So बाकी सब, if you have 2 things, if you're doing 2 jobs, like I'm doing social media, it's easier. अगर मैं सिर्फ social media कर रही हूँ ना, you will tell me Elon Musk आ गया, मैं अभी content बना के अभी डाल सकती हूँ. बिल्कुल. Because that is my advantage then. यहाँ I have this disadvantage that I cannot act the minute you tell me to act. I have to finish what I have committed to, फिर मेरे को आके act करना. How do you feel about metaverse? I am actually, मैं तो बहुत, मेरे को टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा शौक है. So I want to like experience that, but at the same time I'm not very sure कि मुझे पता है कि उसकी जो repercussions होंगे वो negative ही होंगे. क्योंकि you know, obviously your virtual life is going to be much better than your actual life, and you're going to get stuck into the matrix. कि you know, some people, matrix अगर आपने देखी है, उसमें character होता है जो voluntarily अंदर जाता है वापस matrix के. वो बोलता है, you know, this chicken, I know it's just a programming that, you know, when I eat it, I'll feel that it's something juicy and it's tasty, but I still want it. I don't want to live outside the matrix. So probably in the future there will be एक ऐसा ऑप्शन आपको दिया जाएगा कि आपको वर्चुअल दुनिया में रहना है, तो you can give your consent and then you'll be perpetually sent to the virtual world. This is what I think is going to happen. Some only few people will be left. मतलब बाकी सब वर्चुअल में ही जी रहे रहेंगे. हाँ, वो बोलेंगे हमें निकलना ही नहीं है, आप हमको पॉड्स में डाल दो, हम वर्चुअल में ही चलते रहेंगे. और this could be like the future probably. तो आई थिंक फिजियोथेरेपी वाइज भी हम ये काफी सारे लोगों को बोलते हैं, बिकॉज एक्टिविटी कम हो गई. जब बोलते हैं ना सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इट इज कि पहले सुपरमार्केट जाते थे, मार्केट जाते थे सब्जियां लेने, या सुपरमार्केट वो ट्रॉली में घूमते थे, मूवी जाते थे. फॉर एवरी लिटिल थिंग यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस. नाउ एवरीथिंग कम्स होम. स्विगी का मार्ट खुला, स्विगी का इंस्टेंट मार्ट खुल गया. मतलब आपको हम यहाँ लॉन्ग फॉर्मेट, शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो की बात कर रहे हैं, लोगों को 30 मिनट्स रुकने नहीं हो रहा है, 1 घंटा रुकने नहीं हो रहा है सामान के लिए. एंड दे आर डूइंग लाइक अ 10 minute give me Maggie, give me. That is how quick people want things, and everything's on the phone. Thanks to lockdown,
ये तो let's say if I want to take a class or even if I want to work out, I don't have to go out. I'll do an online class. I'll sit it. मतलब I can literally live in one room. That's what it is. आपकी वो sense of वो स्पेस भी खत्म हो जाती है इन द सेंस कि पहले हमें था यार एक आपका दिमाग में होता है ना कि इमेजिनेशन ऐसा एक बड़ा घर लेंगे, बाहर ऐसे गार्डन होगा, ये होगा वो होगा। अब वो भी मैंने देखा बहुत लोगों को नहीं चाहिए। दे आर हैप्पी यार, एक रूम में ये है, पिक्चर भी यहीं देख लेंगे, नेटफ्लिक्स, खाना भी ऑर्डर कर देंगे 2 मिनट में, कुछ करना ही नहीं, किचन भी नहीं होगा घर में, चलेगा। I have a friend who does a lot of meditation and बोलते भी है आप जैसे ही उठो you should either meditate or work out. Yes. And then जैसे आपने बोला that you used to pick up, work out and then you used to feel very energetic throughout the day. Yes. तो उसने मेरे को एक बार ऐसे ही I think we were driving and he asked me very randomly, हमारा बात उस बात पे नहीं चल रहा था, हम कुछ और बात कर रहे थे. He was like, Rebecca, do you breathe? And I looked at him and I said no. Because I realized that he is asking me that do I breathe consciously? Yes. And I realized no. मतलब जो हो रहा है, मैं I'm not doing anything. I'm not even focusing कि 2 seconds सांस ले ले. I've not done that. I'm just working. मेरा body जो breathe कर रहा है. I just told him I don't think so. I do, yeah. And फिर मैंने किया. I made a habit that even if you do one breath now, मतलब just feel now that you are breathing. That yeah. And I think like that ये time आ गया. It makes you aware of your physical presence. Yes. But in a very non-physical way, because I am also a full-time meditator and मैं तो मेडिटेशन के लिए मैंने बहुत मेहनत भी करी कि I wanted to do certain courses and मेरे को लग रहा था कि अभी अगर मैं कर लूंगा तो वो हो जाएगा, after the baby तो obviously it won't be possible because we'll have other responsibilities और वो वही सच हुआ। हाँ जी, everything around the baby. So उस समय ये एक बहुत अच्छी चीज है कि जब आप एक तो आप नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हो, ठीक है, the body is breathing, you are not breathing. But once you breathe consciously, once you get aware, once you become aware कि अच्छा ये breath मैंने ली है इस समय, तो वहां पे ना एक अजीब सा पॉइंट आता है, there is some sort of realization which we can't express in words, but आपको प्रेजेंस फील होती है। हाँ, प्रेजेंस फील होती है आपको कि अच्छा एक अगर आप 1 सेकंड के लिए ब्रीथ करोगे ना आंख बंद करके कि ओके नाउ आई एम ब्रीदिंग एंड जस्ट ऑब्जर्विंग दैट ब्रेथ, it's very enlightening in itself, that simple process. So I think that's important. एक दो सवाल आखिरी के मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि have you been like getting any brands collaboration and how do you like because obviously you have to maintain your credibility. So as an influencer and as a doctor, दोनों जगहों पे आप एक बहुत responsible position में हो. So how do you take care of that? I think उतना भी हमारे पे है भी नहीं that we have to take care of that. Our audience is only very smart. ठीक है, बहुत smart audience है. I remember when I did my first brand collab, it was a beauty brand. It had come because वो first था. I was like, let's do it. मेरा तभी कोई rules and regulation नहीं था. I was like, हाँ ठीक है, why not? But your audience, while they love you, they're also smart enough to see, paid collaboration, she's getting money. And they comment also that way, कि अच्छा आप influencer बन गए हो, अच्छा marketing. So I think it is not on to, if I sit और मैं ये believe करूँ ना कि मैं अपने audience को control कर रही हूँ, I'm dumb. My audience is smart. I think everybody's audience is smart. वो जमाना अलग था where I don't know if we can take names, but like superstars like say Amitabh Bachchan or Shah Rukh Khan would come and be like, I use this detergent, and we'd be like, अरे Amitabh Bachchan use करता है, हम भी use करेंगे, है ना? We've come from there कि नहीं Amitabh Bachchan ने बोला, नहीं Shah Rukh Khan ने बोला, to a point where now we know that if Shah Rukh is doing a Vimal, he's getting paid, so he's doing it, and why not? Yes. So as an audience, when we are so smart that a superstar is doing an X brand, because of course he must be getting money for it, or he shifted from one soft drink to another soft drink because the other soft drink is paying better, paying more money. Yeah. So if we are so smart, तो हमारी audience भी हम ही है ना, मतलब exactly. We are only consuming. I'm consuming your content, you're consuming my content. तो हमको उनको दिखता है कि paid collab बंदी को पैसा मिल रहा है, and if they like it, they will still like it. If you have not done the ad very well and they feel like यार ये तो सिर्फ बेच रही है, they'll eventually get bored.
तो आई थिंक आवर Absolutely. पार्ट इन इट इज ओनली कि हम कितना क्रिएटिव होके उनको उसमें भी एंगेज कर सकते हैं. इट्स लाइक दो पैर नाव में पैर है. करेक्ट. आपके फील्ड में किस तरह के कमेंट्स आते हैं? आई मीन आप तो, यू बीइंग अ डॉक्टर, यू ऑब्वियसली यू आर एन एक्सपर्ट, बट फिर भी हाँ, लोग कुछ ना कुछ टिप्पणी तो करते ही होंगे. आई थिंक आई बीन वेरी लकी. तो जब मेरा एक बहुत सडनली इंक्रीज हो गया था ना बिकॉज ऑफ द वायरल वीडियो, तो जब 10K हो गया था, आई स्टार्टेड फ्रीकिंग आउट विद द अमाउंट ऑफ डीएम्स दैट आई स्टार्टेड गेटिंग. But I had a friend who does YouTube and she's also on Instagram, and she just told me, Rebecca, ये start है बहुत, and she told me that I don't want to tell you beautiful things, I want to give it to you on your face, it's going to get dirty. DMs में ऐसी ऐसी चीज आएंगे that you will not want to open your DMs, and people are going to come and fight in your comment. कोई आएगा फिर उसको रिप्लाई करेगा, फिर उसको रिप्लाई, and they will like sit and have their own conversation वहां पे. Touch wood अभी तक नहीं हुआ. Amazing. My DMs, I'm telling you, are एक बार ऐसा नहीं हुआ where I've opened. They say things like you're pretty, you're beautiful, which is okay, but there's a line that is not crossed. 75-80% of the people say, "Ma'am, आप अच्छे लग रहे हैं." "Ma'am, ये वीडियो अच्छा था." "Ma'am, आपका वीडियो क्यों नहीं आया?" So that itself is like a very high line. The ones who don't use ma'am also are not, they have not crossed a line where I feel like क्या हो रहा है यार, मतलब कैसे बातें करो, ऐसा I've never felt. In the comments also, everybody is usually just putting emojis or saying that we like your work or we like you and all of that. Very rarely and I respond if I see something. If somebody's asked something, I go and comment over there, because if I'm putting a video, I'm also here to help you. तो मैं कभी कभार comments में भी जाके reply कर देती हूँ, but I've not had hate come my way. एक बार शायद I think I had made a wine video about alcohol का, how to remove a hangover या ऐसा कुछ तो बोला था, and end में बोला था कि मत पियो, but अगर पीना है वैसे पियो. तो उसमें किसी ने आई थिंक आके बोल दिया था कि बेवड़ी साली. तो my followers went and I didn't know. I put the video and I went to work. Now I am getting screenshots in my DMs of followers saying somebody has done this, and my followers have gone and bichara restricted that account. And by the time I have access, that comment is not there. Yeah. And so you do have like a force like, you know, working for you, which are your, you know, loyal subscribers and followers. But at the same time, ये unavoidable है, ये सब तो होना ही है. Yeah, तो touchwood अब तक तो मेरे को hate नहीं आया है, but I don't think I'll ever get affected. Because जो अच्छा भी आता है ना, I'm not getting affected by that also. I'm putting what I like. I find it funny. मैं 2 बार देख के बड़ा मस्त है, I'll post अच्छा डाल दो. Correct. हाँ. So that, I think even you do that, or most of us, what we like now, we try and do that. Abhi some random thing is worked, even if we try replicating, वो हो नहीं पाता है. It won't happen. Yeah. I'm telling you, this one thing ना is like, ये Instagram ने किया है, ये और किसी ने नहीं किया. कि पहले हमको स्कूल से कंपटीशन सिखाया जाता है. You have to come first, you have to come second, you have to come at this rank. तो if say I and you are in the same class and I come first and you come second, I am already your competition. ये like अभी Rebecca से better करना है. Correct. Instagram has done this thing and nobody else has done this thing, that two people can collab. Yeah. And you all can collaborate and work without competing with each other. Yes. So a doctor and a doctor can collab without having their egos. A dancer and a dancer can collab and reach out to their. So this Instagram has done कि competition नहीं है अभी collaborate with people and coexist, work, which is beautiful. Absolutely. So I think I think as creators we all are learning, you know, किस तरह से कैसे सर्वाइव करना है, कैसे कोएग्जिस्ट करना है, क्योंकि शुरू में अगर आप कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ नहीं भी चल रहे ना, तब भी आपके सब्सक्राइबर्स आपको कंपटीशन में डाल देते हैं. लाइक इफ यू आर डूइंग दिस, ओ आप शायद उसकी जैसा कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग, बिकॉज वो उनके दिमाग में एक रेफरेंस होता है. बट इट टेक्स टाइम टू, यू नो, मेक देम अंडरस्टैंड आपका जो ओरिजिनलिटी है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है. एंड आई थिंक इवन इफ टू पीपल आर डूइंग द सेम थिंग, परसेप्शन हमेशा अलग होगा चीजों को करने का, और परसेप्शन से ना स्टोरी बदल जाती है. And let's say abhi, say if you are a funny person and I'm a funny person and Elon Musk का आया है, why can't it be that you and I have gotten the same idea and we have put a meme? Exactly. हमको एक ही funny idea क्यों नहीं आ सकता है? अभी इसमें क्यों जाके बोलना है कि someone's copying somebody? And
अभी लेट्स से वो कच्चा बादाम आया था, अभी a million people were doing kacha badam. Did you go and say copy हो रहा है? No. नहीं, That's inspired. एग्जैक्टली, Something is trending. आप inspire हो रहे हो. अभी आप same step कर रहे हो. आप हम्म, different. अभी आप नहीं बोल रहे हो copy हो रहे हो. कॉपी, तो everyone is just basically looking at each other and seeing कि okay this is working. चलो let's do this, but let's do it in my way or let's do it in the same way. absolutely. But I think Instagram is that kind of a platform. What you are giving us, we are absorbing that only and Yes, producing yes, it to you. yes, absolutely. Yeah. This was a very nice conversation, very nice and friendly conversation that I had with you. And guys, check out her Instagram channel. I'll leave the links in description. If you have any message for your fans or your family or your Instagram, followers. Okay, I can just tell everybody कि यार अपनी पेट सीधी रखो और पानी पीते रहो. बस. पानी मेरे पास है नहीं, लेकिन instant. It's कैसे very बैठा था देखा instant. आपने ऐसे, हाँ, yeah. बट इतनी हाइट लंबी होगी. चलो तो गाइस 2 इंच हाइट लंबी करने का रास्ता बता दिया मैडम ने आपको.